Let us start next lesson, lesson number 3, the midnight visitor. Lesson number 3, the midnight visitor. Let us start the lesson. Ausable did not fit in a description of a secret agent Fowler had ever read. Ausable did not fit in a description of a secret agent Fowler had ever read. सीक्रेट एजेंट फॉवलर के बारे में जो बताया वो उसको फिट नहीं लगा. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. Felt let down means disappointed. Following उसका पीछा करते हुए him, the musty corridor, कॉरिडोर पार करके उसका पीछे करते हुए of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. ऑसबल जिस होटल में ठहरा था उसका पीछे पीछे करके वहाँ पहुँच गया तो थोड़ा निराश हो गया. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. रूम तो बहुत छोटा था. On the 6th and top floor, 6th floor में, वो भी सबसे ऊपर वाला. And scarcely a setting for a romantic adventure. Romantic यानी loving, setting यानी surrounding, scarcely यानी barely, ना की बराबर. Scarcely, barely. कोई रोमांटिक एडवेंचर का कोई सेटिंग वाला जगह नहीं था. Ausable was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Ausable के बारे में बताएं तो मोटा, उसका accent यानी बोली, इसके लिए विशेष है. Though he spoke French and German passably means fairly, easily. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. Though he spoke French and German passably, French और German आराम से बोल लेते फिर भी, he had never altogether lost the American accent. American accent वो कभी भूला नहीं. He had brought to Paris from Boston 20 years ago. 20 साल पहले जो पेरिस में लेके आया हो वो कभी वो भूला ही नहीं. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर. आप निराश लग रहे. ऑसबल ने पूछा वीजली विथ ए रैटलिंग साउंड, तेज आवाज़ में, फटफड़ा आवाज़ में बताया. यू वे टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट. तुम्हें बताया है ना, तो मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ. ये स्पाई, जासूस, डीलिंग इन एस्पियोनेज, एक्ट ऑफ फाइंडिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कहते हैं एस्पियोनेज एंड डेंजर. यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर. आप मुझसे मिलना इसलिए चाह रहे हो ना कि मैं एक राइटर हूँ. आप एक राइटर हो. यंग एंड रोमांटिक, जवान, रोमांटिक को इम्पोर्टेंट देने वाला.
You envisioned mysterious figures in the night. You envisioned, imagined mysterious figures, रहस्य रूपी आकृति figures in the night. The crack pistols, crack यानी break of pistols, pistol यानी pistol. Drugs in the wine, नशीली चीज़ें इत्यादि चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रख के लिखने वाले है ना. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. फ्रेंच होटल का कोई बेकार कमरे में रहने वाला इस आदमी के लिए, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, dark-eyed means untidy, बेदंग कपड़े पहनने वाले, gets only a prosaic telephone call. Prosaic means ordinary. Telephone call making an appointment in his room. You have been bored. इस तरह के कमरे में अपॉइंटमेंट लेके आकर तुम पछता रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stepped aside to let his frustrated guest enter. फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को स्वागत करने के लिए दरवाज़ा खोल के द फैट मैन चक्कल्ड, खड़े होने वाला आदमी, उसको देख के मतलब से हंसना, उसको कहते हैं चकलिंग. इस तरह के एक आदमी को कमरे में मिलने के लिए ज़्यादा कुछ अपॉइंटमेंट का ज़रूरत नहीं था. कि सिंपल फ़ोन कॉल से उसका अपॉइंटमेंट हुआ. वो बड़े आराम से उससे मिलने आए और उसके लिए स्वागत करना था और इसलिए वो दरवाज़ा खोल के हंसते हुए वहीं खड़े रहा. यू आर डिसल्यूशनड, ऑसबल टोल्ड हिम. आपको गलत तरीका बताया गया, ऑसबल ने बोला. बट टेक चीयर, कोई बात नहीं, खुश रहो माय यंग फ्रेंड. प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर. अब तुम एक कागज़ देखोगे, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल men and women have risked their lives. Come to me. अब ऐसे ही कागज़ देखेंगे कि विच सेवरल men and women have risked their lives. Come to me. जिंदगी में रिस्क लिया हुआ कई लोग, आदमी औरत जो भी है, मेरे पास आने का कुछ बात उसमें देखने को मिलेगा. Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? Someday soon that paper may well affect the course of history. Course यानी direction. आने वाले दिनों में इसकी जो इतिहास कुछ नया मोड़ पे दिखाई देगा. In that thought is drama, is there not? ये सब नाटकबाजी है. As he spoke, Ausable closed the door behind him. Then he switched on the light. ये कहकर उसने दरवाज़ा अंदर से कुंदी लगाया, लाइट जलाया. And as the light came in, Fowler had his first authentic thrill of the day. जैसे रोशनी आया तो फाउलर ने अपना ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे महसूस किया. ऑथेंटिक थ्रिल में वास्तविक इवेंचर, वास्तविक एडवेंचर. थ्रिल का इधर मतलब एडवेंचर माज है, ऑथेंटिक यानी वास्तविक. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम इज स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन. वो इसलिए एक वास्तविक एडवेंचर का रूप था क्योंकि कमरे के रोशनी में उसने
कमरे के आधे रास्ते में पहुंचे ही ये स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल पकड़ता हुआ एक आदमी नजर आया। ऑसबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ऑसबल आश्चर्यचकित हो गया। मैक्स ही व्हीस्ड, गरगराहट का साउंड में उसने बोला, मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुम मुझे आश्चर्यचकित बनाया। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम बर्लिन में होगा। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, मेरे कमरे में तुम्हारा काम है, क्या काम है? मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स पतला आदमी है, ये लिटिल लेस दैन टॉल, लंबाई कम है। विथ फिकर्स फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, शक्ल से लगता है चालाक है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फोक्स, फोक्स का जैसा थीकी चेहरा है, मतलब पतला चेहरा है, पॉइंटेड चेहरा है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एस्पेशली मेनेसिंग, ट्रबलिंग। तो मैक्स के बारे में बताया थोड़ा बहुत, इधर स्लेंडर है, स्लिम में, हाइट कम में। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, चालाक नजर आता है। पॉइंटेड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस यानी फेस, उसका चेहरा फोक्स का जैसा है, लोमड़ जैसा है। लोमड़ को देखा होगा, लोमड़ी जो स्त्रीलिंग है, तो सब फोक्स को लोमड़ी कहते हैं, फोक्स लोमड़ होता है। उसका जैसा चेहरा है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एस्पेशली मेनेसिंग, बंदूक के अलावा देखा जाए तो कोई खतरा नहीं है। द रिपोर्ट ही मर्मेड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आज तुम्हारे पास कुछ मिसाइल पहुंचने वाला है ना, उसका रिपोर्ट बताओ। मिसाइल है ना, एक्सप्लोडिंग वेपन। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं ले जाऊंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन यूर्स, तुम्हारे हाथ में रहने से अच्छा है मेरा हाथ में रहे। Ausable moved to an armchair and sat down heavily. Ausable एक आर्म चेयर में जाके बैठ गया। हेवली मीन्स जल्दी, फास्टली, तेजी से। आर्म चेयर जानते हो ना, जिस चेयर में हाथ टिकाने का डंडा है, वो ये आर्म चेयर। आई एम गोइंग टू रेस द डेविल, आई एम गोइंग टू रेस द डेविल मीन्स मैं फाइटिंग करने जा रहा हूँ विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं मैनेजमेंट से लड़ाई करने जा रहा हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, तुम चाहे तो इसके लिए बेट रख सकते हो। ही सेड ग्रीमली, वो सीरियसली कहा, मैं तो आज अथॉरिटी से, मैनेजमेंट से लड़ने वाला हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं तो बेट रख के देखो। दिस इज द सेकेंड टाइम इन मंथ दैट somebody has got into my room through that nuisance of the balcony. इसी महीने का दूसरा टाइम है ये, सेकेंड टाइम है कोई बालकनी से मेरे कमरे में उतरा है। Fowler's eyes went to the single window of the room. उसने वो विंडो को देख लिया जहाँ से उतरा है। It was an ordinary window. विंडो तो नॉर्मल था।
against which now the night was pressing blackly. और वहाँ अभी इतना डार्कनेस दिखाई दे रहे, अंधेरे में. बालकनी मार्क सेट. बालकनी क्या मतलब? विथ ए राइसिंग इन्फ्लेक्शन, साउंड ऑफ टॉकिंग. नो, ये पास की. पास की मीन्स मेन की. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. अगर वहाँ से आना है कोई तो उसके पास उसका एक और चाबी उसके पास होगा. It might have saved me some trouble had I known. मुझे जो जानकारी था उससे मुझे थोड़ा तसल्ली मिलने वाली एक आइडिया था ये. It is not my balcony, Oswald said with extreme irritation. तो उसने बोले ये मेरा बालकनी थोड़ी है. It belongs to the next apartment. ये दूसरा कमरे में जाने का रास्ता है. He glanced explanatorily at a fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. देखो, ये रूम के उधर जाने का एक लिविंग रूम में जाने का एक रास्ता है ये. इट हैड द बालकनी, उसी का है बालकनी. विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, वो मेरा विंडो तक फैला हुआ है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, एंड समबडी डिड लास्ट मंथ. पिछले महीने भी वहाँ से कोई यहाँ निकल आया था. The management promised to block it off, but they haven't. मैनेजमेंट ने ये बताया कि बस वो ठीक करके देंगे, अब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने किया ही नहीं.